Okay, we have already started with group 1, group 2. Okay, we have studied about hydrogen. We have done the initial part of the group 1, group 2. Now today we are going to do beta reactions of group 1 and group 2. As I told you beta, smaller cation. देखो beta, I'll just tell you beta. Okay. As you go down in the periodic table, lithium is what beta? Smaller. Right? Lithium is small. Lithium, then we have sodium, then we have potassium. As we go down, the size increases, right? तो इसका if I take iron also तो इसका size ऐसा होता है. So अच्छा, and you know beta oxygen, oxide, when I say oxide, oxide is small. Oxide is small. Then I say we go to what? Peroxide. Peroxide is big. Then we go to superoxide. Superoxide ion is very big. Superoxide. ओके सो आई जस्ट राइट ऑक्साइड का O2 माइनस होता है, पेरोक्साइड दो O पे मिलके 2 माइनस चार्ज होता है, मतलब 1 पे 1. और सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? दोनों O पे मिलके कितना चार्ज होगा? 1. तो अभी बेटा लिथियम का वैलेंसी 1 है, इसका 2 है, तो ये दे क्रिस क्रॉस तो क्या बनेगा? लिथियम इधर पे जाएगा, ये O इधर आएगा, तो व्हाट आई गेट? लिथियम ऑक्साइड. इसमें बेटा इसका 1 है और इसका ये 2 इधर आएगा, एंड दिस विल गो हियर, सो व्हाट आई गेट? Na2O2 पेरोक्साइड. इसका 1 1 है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? KO2. इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड. नाउ इन एग्जाम आई टेल यू द रीजन व्हाई लिथियम फॉर्म ऑक्साइड. क्योंकि रूल क्या होता है? स्मॉलर कटायन एंड स्मॉलर एनायन विल फॉर्म कंपाउंड. तो लिथियम इज स्मॉल, देयरफॉर इट कैन फॉर्म ऑक्साइड. लिथियम फॉर्म ऑक्साइड. सोडियम का और है तो व्हाट इज द रूल बेटा? स्मॉलर कटायन विल फॉर्म बॉन्ड विथ स्मॉलर एनायन, बिगर कटायन विल फॉर्म बॉन्ड विथ बिगर एनायन. Clear? Okay. So this is the main rule. Clear? Right? Then बेटा whenever they will react with halogen, halogen के साथ अगर ये होगा तो lithium will react with halogen. तो क्या बनेगा? lithium chloride. Sodium will react, then what it will form? Sodium chloride. Clear? If it reacts with hydrogen, hydrogen valence is 1, lithium is 1. So when it reacts with hydrogen, it will form lithium hydride. इसमें हाइड्रोजन नेगेटिव होगा, लिथियम पॉजिटिव होगा. सोडियम विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड. ओके, आई एम नॉट बैलेंस द इक्वेशन. Clear? So this was for group 1, the reaction. Then beta we have studied if you put them in water. Sodium, if it reacts with water, beta, it is highly explosive. Reaction is highly exothermic. You get sodium hydroxide and hydrogen is released. And reaction is highly exothermic. Clear? Right? तो सिमिलरली अगर हम लोग ग्रुप 2 में जाएंगे बेटा, ग्रुप 2 में क्या है बेटा? मैग्नीशियम, कैल्शियम. बेटा ये लोग अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो दे विल फॉर्म व्हाट? करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड. क्योंकि इनका वैलेंसी 2 है ना बेटा, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड. ओके. इफ दे रिएक्ट विद हैलोजन, तो ये हैलोजन के साथ ये रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लो MgCl2. व्हाट इट विल फॉर्म बेटा? MgCl2. क्लियर? Calcium, if it reacts with chlorine beta, what it will form? CaCl2. If they react with oxygen, magnesium will react with oxygen. What it will give you? Magnesium oxide. Right? Calcium will react with oxygen. It will give you calcium oxide. Easy. Right? And if they react with water, calcium, when it reacts with water, it will form what beta? Calcium hydroxide. And hydrogen is released. But beta, magnesium whenever it reacts beta, so magnesium whenever it reacts with water beta, it will give you magnesium oxide and hydrogen. So these are the basic reaction beta, right? So look beta, I have showed you this page number 115 in your textbook beta. If you see, lithium will form lithium oxide, सोडियम ने पेरोक्साइड बनाया. क्यों बनाया उसका रीजन भी मैंने आपको बताया. फिर ये सोडियम पेरोक्साइड कहाँ, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कहाँ पे यूज होता है? इन सबमरीन. ओके. सबमरीन में बेटा इट जनरेट्स व्हाट? ऑक्सीजन. बेटा सबमरीन के अंदर हम लोग ने क्या रिलीज करके पूरे सबमरीन में व्हाट दे हैव स्प्रेड बेटा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिक्स होके क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन. क्लियर? सो इट इज यूज्ड इन माउंटेनर, स्पेस एंड सबमरीन. ओके. Then beta, whenever they are metal oxide, when we dissolve in water, they will give you what? Base. Therefore, they are strong alkali, group 1.
अब ये ग्रुप टू का बेटा बताया, ग्रुप वन का भी बेटा कि फाइ सी द रिएक्शन ग्रुप वन में। ग्रुप वन अगर ना, हम लोग ने सब रिएक्शन कर दिया बेटा, दिखाई दे रहा है ना ग्रुप वन में, ये देखो। अच्छा, लिथियम अगर बेटा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो लिथियम वैलेंसी इज 1+, नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है 3-, तो क्या बनेगा लिथियम नाइट्राइड। ग्रुप टू वाले नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो गए तो क्या बनेगा, ये ग्रुप टू है मैग्नीशियम वगैरह। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिएक्ट होगा तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, तो व्हाट यू गेट मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक रिएक्शंस बेटा। लुक वी हैव डन ऑल दिस बेटा, कैन यू सी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, देखो नाइट्राइड, राइट। ओके, सोडियम को पानी में डालेंगे तो व्हाट वी गेट बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, कैन यू सी दिस। Calcium will give you calcium hydroxide and hydrogen. Then reaction with hydrogen we did. ग्रुप वन क्या नाम बनाएगा, मेटल हाइड्राइड्स, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, राइट। ग्रुप टू वाला होगा तो CaMH2 क्यों आया, कैल्शियम क्या बनता था MgH2CH2। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, ये दिस यू शुड नो बेटा, इसको हम लोग कहते हैं फजान्स रूल। कौन सा रूल है, फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स रूल क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं आपको बता देता हूं। स्मॉलर, हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, ग्रेटर इज कोवैलेंट कैरेक्टर। ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब जिसका, जो अनाय कटायन बेटा जितना छोटा होगा, अगर उसने कोई कंपाउंड बनाया, आयनिक कंपाउंड बनाया, तो हाँ बेटा, तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी मोर, ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और उल्टा भी मैं बोल सकता हूं, बिगर द साइज ऑफ अनायन, अनायन जितना बड़ा होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो भी आप ऐसा, आप बोले सर इसका क्या है, हमको क्यों पढ़ना है ये, एकदम सिंपल बताता हूं बेटा। अभी आप देखो बेटा, मैंने अगर आपको 3 कंपाउंड दिया, ऐसे MCQs आ सकते हैं बहुत सारे। मैं अगर आपको बोलूंगा देखो, लिथियम क्लोराइड ये मेटल और नॉन मेटल है कि नहीं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ये मेटल और नॉन मेटल है ना बेटा, तो इनके आप बॉन्ड कौन सा है, ये आयनिक बॉन्ड है, बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। बट तुमको पता है आयनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है। तो भी आप बोलोगे सर तो इसमें से कौन सबसे ज्यादा, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो इन सब में छोटा कौन है, हु इज द स्मॉलेस्ट, lithium is smaller, sodium is little bigger, potassium is still bigger, तो which cation is smaller, lithium। तो लिथियम क्लोराइड में विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो हम लोग ने लिखा है ना, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, सो दिस विल हैव मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ऐसा गिव रीजन में पूछिए, आप बोलेगे कि अरेंज करो इसमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, लिथियम में, फिर सोडियम में, फिर पोटेशियम। आपको गिव रीजन भी पूछेगा, देखना, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड बट लिथियम क्लोराइड एज कोवेलेंट, क्योंकि लिथियम इज स्मॉलर, तो आप लोग ये लिखोगे बेटा फजान्स रूल, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर? क्योंकि बेटा जितना कटायन छोटा होगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करेगा, पुल करेगा मतलब शेयरिंग में लाएगा, तो कोलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट फजान्स रूल। तो आप बोलोगे सर ये आपने क्यों दिया, ये वाला पार्ट, टन टन, ओ माय गॉड। तो बिगर द साइज ऑफ एन आयन ग्रेटर, इसका मतलब क्या, अगर सपोज बेटा मैंने कटायन सेम रखा है, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, अब इसमें लिथियम का साइज सबका सेम है, तो किसका साइज बढ़ रहा है, अनायन का साइज बढ़ रहा है कि नहीं, तो अभी इसमें से इन तीनों में से किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो लिथियम आयोडाइड में होगा बेटा। ठीक है, लिथियम आयोडाइड में। ओके, तो देखो ये मैंने ये आपको ये समझा, देखना स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, वो लोग ने वो लिखा इलेक्ट्रॉन पुल विल बी मोर, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द, मैंने एकदम शॉर्टकट से तुमको बताया था, फजान्स रूल। हेलोजन के साथ रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। ओके, ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों बेटा कौन है बेटा, ग्रुप वन में अल्कली मेटल में दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, right, alkaline earth have two, so they both will lose their electrons, so they are powerful reducing agent, they are powerful reducing agent। और reducing character भी बेटा ऊपर से नीचे जाएगा तो it will increase,
लिथियम इज स्मॉल, सोडियम इज बिग, पोटेशियम इज स्टिल बिगर। तो कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा बेटा? ये देखो, पोटेशियम विल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे दूर है बेटा। बट बेटा दिस इज इन नॉर्मल स्टेट। अगर लेकिन लिक्विड स्टेट में पूछा, लिक्विड फॉर्म में, तो बेटा लिथियम सबसे ज्यादा होता है बेटा। ठीक है। अब बेटा आप लोगों को बेटा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट, ये लिक्विड अमोनिया वाला, दोनों का। बेटा अभी इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं। देखो, अल्कली मेटल को तुम अगर लिक्विड अमोनिया में डालोगे, तो आपको खाली इतना याद रखना है कि इट विल गिव डीप ब्लू कलर्ड। क्यों डीप ब्लू कलर्ड होगा बेटा, वो भी मैं बता देता हूँ बेटा। बिकॉज है ना, ये अल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो देखो बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखना, इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज दे दिया इसको, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? प्लस। तो ये याद रखो, द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप ब्लू कलर। और ये सोल्यूशन क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। बस इतना याद रखना है आपको। बेटा मैं मेटल हूं, मुझे अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन अमोनिया को दे दूंगा, बिकॉज आई एम अ मेटल। अच्छा, कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा तो इट विल हैव व्हाट? डीप ब्लू कलर। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, देयरफॉर इट विल बी व्हाट? पैरामैग्नेटिक। दिस इज फॉर ग्रुप वन। ग्रुप टू में क्या होगा बेटा? अच्छा, अब तुमको पता है कि इसमें और एक चीज होता है, इसको बाद में मैं, यहाँ पे तो हम लोग ने कर दिया, बाद में धीरे धीरे जो तुम्हारा ब्लू कलर है वो क्या बन जाएगा? ब्रॉन्ज, एंड सोल्यूशन बिकम्स डायमैग्नेटिक। ठीक है। क्यों? क्योंकि वापस ये अपना जो इलेक्ट्रॉन था ना बेटा, जो अमोनिया के साथ था, वो मेटल वापस ले लेगा बेटा। ये देखो, एम मीन्स अमोनिया बेटा। ग्रुप टू में भी बेटा सेम चीज होगी कि नहीं, बोलो बेटा? ग्रुप टू में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा? दो इलेक्ट्रॉन। क्यों रे? अरे बेटा, कैल्शियम लूजेस टू इलेक्ट्रॉन ना, वैलेंस इज टू ना बेटा कैल्शियम का। तो देख बेटा, वो दो इलेक्ट्रॉन वाला अमोनिएटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसका खाली कलर याद रखना। कलर कौन सा बनेगा? डीप ब्लू ब्लैक। ओके, वहां पे डीप ब्लू कलर बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है? डीप ब्लू ब्लैक। ओके। अब बेटा आप लोग बोलोगे सर ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? बेटा इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। वेरी इजी डायगोनल रिलेशनशिप। इट इज ऑब्जर्व ओनली इन बेटा पीरियड टू एंड पीरियड थ्री। पीरियड टू एंड पीरियड थ्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये आप लोगों को इतना तो पता ही है, क्या होता है डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड? ये डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना बेटा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। यहाँ पे कौन होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अभी आपको पता है बेटा डाउन द ग्रुप क्या होता है? देखो ये बेटा, डाउन द ग्रुप में जाओगा तो साइज बढ़ेगा, अक्रॉस द पीरियड जाएगा तो साइज धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे भी साइज क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। लेकिन आप एक चीज देखो ना बेटा, इन दोनों को देखो, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है कि नहीं? इन दोनों का साइज सिमिलर बोला मैंने। अच्छा, ये एक दूसरे के कहां पर है बोलो बेटा? डायगोनल है कि नहीं? या इसको ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल। ये बेटा, इफ माय साइज इज सिमिलर, तो my tendency to donate electron will be similar. So I will, so both these will have what? Similar chemical property, and we call them as what? Diagonal relationship or bridge element. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी आपको। अच्छा, क्यों है ये लोग? वाई? वाई दे आर डायगोनल? क्यों? वाई दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर वर्ड यूज किया, सेम नहीं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। बिकॉज ऑफ सिमिलर एटॉमिक साइज। सिमिलर साइज में बोली था, सिमिलर, सेम नहीं है, सिमिलर। देखना इन दोनों का साइज सिमिलर नजर आ रहा है कि नहीं? तो मतलब जो जो प्रॉपर्टी लिथियम दिखाएगा, सिमिलर प्रॉपर्टी विल बी शोन बाय मैग्नीशियम। Whatever property is shown by beryllium, similar property will be shown by aluminium.
तो देखो यहाँ पर बेटा ये डायगोनल रिलेशनशिप दिया है ना बेटा, यहाँ पर ये देख रहे हैं, लिथियम इज सिमिलर टू बेरिलियम इज सिमिलर टू, तो लिथियम का डायगोनल कौन है? मैग्नीशियम। बेरिलियम का कौन है? एल्यूमिनियम। बस आपको ये दो का ही याद रखना है। तो सो देख, एलिमेंट फर्स्ट अल्कली ये क्यों होता है बेटा? राइट। सो दे शो सिमिलैरिटी। अभी एग्जाम में पूछे कि क्या सिमिलैरिटीज दे शो करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। व्हाट आर द सिमिलैरिटी शोन? लिथियम का कौन है बोलो बेटा? हु इज द डायगोनल ऑफ लिथियम बोलो? मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम क्या क्या सिमिलर प्रॉपर्टी बताएंगे, वो देखते हैं। ओए, लिथियम क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम नाइट्राइड भी बनाता था, वी डिड ना टुडे रिएक्शन, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाएगा। तुमको पता है कि अगर लिथियम का कार्बोनेट को मैं हीट करूंगा, लिथियम कार्बोनेट, तो इट विल गिव मी लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी मैं हीट करूंगा, तो इट विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बेटा, यही वो यहाँ पे वो लोग ने दिया है बेटा। कैन यू सी? देयर का डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कार्बोनेट गिव यू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ओके। राइट। तो ये सिमिलरिटी हुआ कि नहीं? ये भी ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, लिथियम भी नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। लिथियम का ऑक्साइड भी डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज एंड गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ए, लिथियम का फॉर्मूला क्या देखना, लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O। इसमें भी क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 8H2O। और ये दोनों कौन है? डेलिक्विसेंट है। अरे डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है? A compound which absorbs moisture from the atmosphere and changes to liquid and changes to liquid। क्लियर है? तो कितना सिमिलरिटी है, दिखाई दिया ना बेटा? सिमिलरली बेटा, सिमिलरिटी हम लोग किसका बनाएंगे, तो भी आप बोलोगे सर बाकी सबका क्या है, वो भी मैं बताता हूँ। तो लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलर प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। राइट ना? तो अपना दूसरा डायगोनल कौन था? दूसरा डायगोनल अपना कौन था बोलो? बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम जो जो प्रॉपर्टी दिखाएगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम भी दिखाएगा कि नहीं, तो वो भी मैं तुमको बताता हूँ। इधर आ जाओ, ये देखो। अच्छा बेटा, आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 4। तो 2,2। तो अगर ये बॉन्ड कंपाउंड बनाता बेटा क्लोरीन के साथ, तो देखना दो दो, एक ये क्लोरीन बन गया, ये भी क्लोरीन। अच्छा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं ना बेटा। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 3। तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। दिख रहा है कि नहीं? ये तो दोनों जन बाहर से लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं बोलो बेटा? लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लुईस एसिड। सो बेरिलियम क्लोराइड इज ऑल्सो लुईस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ऑल्सो लुईस एसिड। अच्छा, ये लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ना बेटा, तो बेरिलियम क्लोराइड इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। तो देख बेटा, यहाँ पे लिखा है ना, देख रहा है? क्लियर है? ये भी लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड, दोनों पानी में सल्यूबल है, ये भी सल्यूबल है। दोनों एम्फोटेरिक भी है। एम्फोटेरिक मतलब क्या बेटा? दोनों देख, बेरिलियम विल रिएक्ट विद एसिड टू गिव यू सॉल्ट, एंड बेरिलियम ऑक्साइड, बोथ ऑक्साइड आर व्हाट बेटा? एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी देखना बेटा, एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है। सो बोथ ऑक्साइड्स आर व्हाट? एम्फोटेरिक। बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? राइट। ये देखो, सिमिलरिटीज हो गई कि नहीं बोलो? अभी बेटा आपके देखो, ये मिठी बाई के क्वेश्चन में ना, मैंने आज जितना पढ़ा है ना मिठी बाई के क्वेश्चन बैंक में, उतना उससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन है। ये देखो, ये मैं तुमको बताते जाता हूँ बेटा, लेकिन ये आपको आना जरूरी है बेटा, बिकॉज एमसीक्यू में आ सकते हैं बेटा। ठीक है ना? देख, डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या था? मैंने बोला था ना, दे हैव सिमिलर, सिमिलर वर्ड यूज किया मैंने, सिमिलर, सेम नहीं किया, सिमिलर, सिमिलर साइज। अब बेटा ये यूजेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, यूजेस वाले क्वेश्चन अंडरलाइन करो बेटा। आप लोग आजकल फोन वगैरह यूज करते हो, तो उसमें कौन सा बैटरी आता है बेटा? लिथियम आयन बैटरी। ठीक है ना बेटा? तो इट इज यूज इन बैटरीज। लिक्विड सोडियम हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। और ये देखो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बेटा, इट इज यूज फॉर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको पता है वो सनरूफ पे आजकल हम लोग सोलर पैनल यूज करते हैं, उसमें क्या होता है बेटा? सीजियम।
पूछते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन यूज होता है, तो सीजियम। बैटरीज में कौन यूज होता है, तो लिथियम। बेरिलियम का क्या यूज होता है बेटा, इट इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का बेटा स्पीड स्लो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर। अच्छा, ग्रुप टू में मैग्नीशियम है कि नहीं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय, मैग्नेलियम बोलते हैं उसको, इट इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट हल्का होना चाहिए और स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम विल इम्पार्ट व्हाट, लाइटनेस, एंड मैग्नीशियम विल गिव इट स्ट्रेंथ। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा अपने बायोलॉजिकल इसमें, बोन्स और टीथ के लिए बेटा। ओके। अच्छा बेटा, कभी कभी अपने को एक्सरे लेना पड़ता है ना अगर हमने को, तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ दवाई लेके ही एक्सरे लेने का, कभी कभी ऐसा अगर उनको कोई डिजीज को डायग्नोस करना होता है, तो उसमें हम लोग क्या लेना पड़ता है हमने को, बेरियम सल्फेट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज अ बेरियम मिल फॉर इंटेस्टाइनल एक्सरे। ये लेने के बाद एक्सरे लेंगे तो उनको पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है बेटा। ये रेडियम कहाँ पे यूज होता है बेटा, कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में क्या यूज होगा, रेडियम, रेडियोथेरेपी। अब बेटा इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बेटा अपना को पता है नर्व सिग्नल जनरेट होता है ब्रेन में, राइट ना बेटा, तो इस पे भी आपको एमसीक्यूज आएंगे बेटा। तो देख, सोडियम इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। सोडियम आयन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम आयन पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। पोटेशियम आयन का क्या जरूरत है, दे आर मोस्ट अबंडेंट विद इन द सेल, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। आप लोग ने बायो वाले बच्चे ने पढ़ा रहेगा सोडियम पोटेशियम पंप। मैग्नीशियम कहाँ है बेटा बोलो, क्लोरोफिल में कौन होता है मैग्नीशियम, ओके। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकेज ऑफ ग्लूकोज एंड फैट मॉलिक्यूल एंड रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अवर बॉडी। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट, हड्डी और दांतों में होता है। कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में भी क्या होता है बेटा, इट इज यूज कैल्शियम आयंस। इट हेल्प्स टू बीट द रेगुलेटिंग बीटिंग ऑफ हार्ट। इसमें बेटा तो ज्यादातर एक तो ये नर्व सिग्नल वाला पूछेगा बेटा सोडियम का, ठीक है ना बेटा, ओके। अब सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड करने से पहले मैं अभी हम लोग ने जो पढ़ा उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। चलो बेटा, हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, जनरल, हाँ देख, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के यूजेस ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। देखो बेटा, लिथियम इन बैटरीज फॉर वॉचेस, ग्रुप वन का ये बेटा। सीजियम इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, पोटेशियम इन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फॉर ब्रीदिंग, लिक्विड सोडियम इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। बेरिलियम का क्या था बोलो बेटा, मॉडरेटर। रेडियम इन रेडियोथेरेपी, बेरियम सल्फेट एज बेरियम मिल फॉर एक्सरे, एलॉय ऑफ मैग्नीशियम फॉर एयरक्राफ्ट। इजी। फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, बायोलॉजिकल यूज किया बोलो बेटा, राइट द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट, दिखाई दे रहा है ना बेटा, ओके। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैंने यहां पर लिखा है, ग्रुप वन में क्या होता था बोलो बेटा, सोडियम आयन पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ। ग्रुप टू का क्या बोलो, कैल्शियम आयन फॉर बोन्स एंड टीथ, इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्लियर, मैंने बोला था ना यूजेस पे क्वेश्चन आएगा ऐसे। फिर देखो इसमें एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके, ये देखो इसमें, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये देख, अल्कली मेटल विच इज यूज्ड इन व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन होता है बोलो, सीजियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल विच इज यूज एज मॉडरेटर, मैंने बताया था ना बेटा, बेरिलियम। क्लियर। फिर यहाँ पर कहाँ पर और कुछ है क्या, अच्छा अभी आ जाते हैं प्रिपरेशन में।
अभी बेटा कंपाउंड, सोडियम के अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे। सबसे पहले कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? तो इसका प्रिपरेशन इज डन बाय सॉल्वेज प्रोसेस, ये याद रखने का। सॉल्वेज प्रोसेस पूछते हैं इसका प्रिपरेशन। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बेटा हियर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट? बेटा तो मैं तुमको बता देता, देखो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। डन डन। अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यू गेट अमोनियम कार्बोनेट। फिर अमोनियम कार्बोनेट के अंदर बेटा हम लोग क्या डालेंगे? एक्सेस ऑफ वाटर एंड कार्बन, यही जो वाटर का एक्सेस पास किया, तो मुझे क्या मिलेगा? अमोनियम बाय कार्बोनेट। ठीक है। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे? NaCl। तो बेटा देखना बेटा, NaCl के साथ तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप बोलेंगे सर हमको तो वॉशिंग सोडा बनाने का है। हाँ, तो अभी इसका यूज करेंगे ना बेटा, अभी स्टेप नेक्स्ट स्टेप में देखो देखो, अपने को वॉशिंग सोडा बनाने का है तो सोडियम कार्बोनेट बनाने का है बेटा। ठीक है कि नहीं? पहले मैंने अमोनियम कार्बोनेट बनाया, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया, फिर बेटा मैंने क्या बना दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज 2। स्टेज 2 में हम लोग क्या करेंगे बेटा? इधर आ जा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमको मिला उसको हम लोग हीट करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? राइट। तो मिल गया कि नहीं हम लोग को ये वॉशिंग सोडा? अच्छा, ये प्रोसेस का एडवांटेज क्या पता था? कि अपने को सेकंड स्टेप में क्या मिला था, देखो ना यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में ये देखना, अपने को अमोनियम क्लोराइड मिला था कि नहीं? तो ये अमोनियम क्लोराइड से मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन प्रिपेयर अमोनिया। याद आ रहा है? 10th में भी पढ़ा होगा। देखिए अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करूंगा तो अमोनिया मिलेगा। तो इसका ये मेथड बहुत अच्छा है सॉल्वेज प्रोसेस में, कि इसमें जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उससे मैं दूसरा और भी कुछ बना सकता हूँ। अभी सॉल्वेज प्रोसेस में हम लोग ने बेटा, आप बोलेगे सर अपने ये पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस, जैसे अभी हम लोग ने सोडियम कार्बोनेट बनाया है ना यहाँ पे। पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, व्हाई? बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो बनता है ना, इट इज हाईली वाटर सोल्यूबल। हाईली वाटर सोल्यूबल, वेर एज सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट। ठीक है। अभी वॉशिंग सोडा का यूज किया है बेटा। ये देखो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? याद रखना, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इसमें से बेटा है ना 9 वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाएगा, देख रहा है? बट अबव 100 डिग्री करेंगे तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी चला जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के अंदर बेटा पानी ऐड करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा और NaOH। अब इसका यूज पूछते हैं। सोडियम कार्बोनेट बेटा वॉशिंग सोडा है तो कपड़े में यूज होगा कि नहीं? कपड़े धोने में मतलब। तो इट हैज अ इमल्सिफाइंग एजेंट बेटा, मतलब वो क्या कर सकता है? ग्रीस और डर्ट को निकाल सकता है। इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी। इट इज यूज टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट। कैसे हार्ड वाटर? हार्ड वाटर में तुमको पता है ना बेटा, ये बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस इट कैन रिमूव, परमानेंट एंड टेम्पररी। ठीक है ना? 10th में हम लोग ने, 9th में आपने वाटर चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन फिर भी इट इज यूज टू रिमूव बोथ टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट। क्योंकि देख, हार्डनेस किसके वजह से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के वजह से। अगर इसको रिएक्ट कर देंगे तो बेटा वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। सोप बनाने में काम में आता है बेटा। ओके। अच्छा, अभी इसमें एग्जाम में देखो आपको ज्यादातर क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछे बेटा, ये देख रहा है? एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा है, द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज विच वन? सोडियम कार्बोनेट तो सॉल्वेज प्रोसेस। फिर आपको ये भी पूछा है कि ये वॉशिंग सोडा कौन है इसमें से? वॉशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। फिर आपको ये सॉल्वेज प्रोसेस के रिएक्शन पूछेगा, हाउ सॉल्वेज प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड। तो देखो ना, पहले हम लोग ने क्या किया था? अमोनिया को पानी में, देख अमोनियम बाइकार्बोनेट, फिर अमोनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट, फिर उसको NaCl में डाला तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड NH4Cl। फिर इसी को हीट किया तो देख मेरे को सोडियम कार्बोनेट मिल गया कि नहीं? और ये बाय प्रोडक्ट जो मिलता है ना, उससे मैं अमोनिया बना सकता हूँ, देख।
आप बोलोगे सर ये रिएक्शन का क्वेश्चन किधर है, तो देखो इधर पे है बेटा, क्वेश्चन कहाँ पे गया। हाँ ये देख, हाउ इज सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस, उसका मैंने पीछे आंसर दे दिया। क्लियर है, राइट। आपको अगर एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, तो देख सोडियम कार्बोनेट को पानी, एक्वेस मतलब पानी में डालो, पानी में डालने के बाद उसने क्या बनाया, एक सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया और NaOH। NaOH इज अल्कली और नॉट, as it forms strong alkali on hydrolysis, therefore sodium carbonate solution is alkaline। सर। सोडियम कार्बोनेट के अंदर पानी डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली सर। बनेगा तो पूरा सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा कि नहीं। क्लियर। हेलो। या टेल मी। सर, डू यू हैव टू राइट ऑल दिस नो यू डोंट इन हैव टू राइट, आई विल शेयर ऑल दिस बेटा। अरे आई एम शोइंग यू व्हाट एवर इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, लुक बेटा। अरे यही रिएक्शन था बेटा, देख ना, पानी में डाला तो देख इसने स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाया है कि नहीं। ये मीठी बाई का वर्कशीट है तो वो मैंने आपको सॉल्व करके ऑलरेडी भेज दिया है ग्रुप में। ठीक है, और ये यूजेस इसके, और एक क्वेश्चन था यहाँ पर देखो, हाँ ये हो गया कि नहीं। एज इट प्रोड्यूस फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली ऑन हाइड्रोलिसिस देयरफॉर इट इज यस। और यूजेस सोडियम कार्बोनेट के देखो यूजेस पूछे, तो व्हाट आर द यूजेस। देखना, मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट, प्रोडक्शन ऑफ सोप एंड कास्टिक, यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट। हो गया, कितना इजी था। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड कौन है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। इसका भी बेटा ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बाय करना पड़ेगा, एनोड कौन है कैथोड कौन है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन का मतलब क्या होता है, NaCl डिजोल्व इन वाटर। और ये मेथड का नाम क्या है बोलो बेटा, ब्राइन सोल्यूशन का कैसनर केलनर सेल। अभी आप इंटरलाइन करो, कौन कैथोड है इसमें, मर्क्यूरी इज कैथोड, कार्बन इज एनोड। अब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा बेटा, और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को पूछेंगे कैथोड पे कौन मिलेगा, हु इज लिबरेटेड। कैथोड पे सोडियम अमालगम बनता है। सोडियम अमालगम मीन सोडियम का एलॉय विथ मर्क्यूरी। एनोड पे कौन रिलीज होगा बोलो, क्लोरीन गैस। बेटा कैथोड तुम्हारा क्या होता है तुमको मालूम है ना बेटा, कैथोड इज टर्मिनल नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। तो सोडियम क्लोराइड हम लोग ने लिया है ना बेटा, सोडियम क्लोराइड, राइट ना। तो सोडियम तुम्हारा कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा, ये देखो कैथोड पे। क्लोरीन कहाँ पे जाएगा बोलो बेटा, एनोड पे। तो क्लोरीन मिला ना यहाँ पे। अच्छा लेकिन ये किसका बना हुआ था, मर्क्यूरी भी, मर्क्यूरी था ना कैथोड पे, देखना बेटा मर्क्यूरी था कि नहीं। तो सोडियम मेटल मर्क्यूरी के साथ मिक्स होकर सोडियम अमालगम, सोडियम अमालगम ऐसा होता है बेटा, ये देखो ऐसा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए क्या, NaOH। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कहाँ पे NaOH मिला ही नहीं, हाँ तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था। इसको मैं पानी में डालूंगा, देख बेटा सेकंड स्टेप। पानी में डालूंगा तो देख मेरे को NaOH मिल गया, मर्क्यूरी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसनर केल्नर सेल। इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इज व्हाट बेटा, ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। हु इज योर कैथोड, मर्क्यूरी। हु इज योर एनोड, कार्बन रॉड। अभी आपको पूछेंगे इसका यूजेस क्या है बेटा। यूजेस क्या है, इट इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। पता है ना बॉक्साइट स्टेप में, और में मेटलर्जी में 10th में पढ़ा था आप लोग ने, जिन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग किसके अंदर डालते थे, NaOH के अंदर। इट इज यूज फॉर मर्सिराइजिंग कॉटन फैब्रिक। आप बोलिए सर ये क्या होता है मर्सिराइजिंग। अच्छा बेटा, कॉटन का जो कपड़ा होता है उस पे चमक लानी होती है कि नहीं, नॉर्मल कॉटन पे ऐसा शाइन नहीं होता है, तो शाइन लाता है और उससे धागे का स्ट्रेंथ बढ़ता है। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड लेबोरेटरी रिएजेंट। लैब में वो रिएजेंट का भी काम करता है। तो भी आप बोलोगे सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ये देखो, टेन टेन, हाउ इज NaOH प्रिपेयर्ड इन लैब, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, राइट। तो अपने को रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि नहीं, पहले मैंने क्या लिखा है देखो बेटा,
कैथोड पे क्या होता है, Na और इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम अमालगम बनेगा। एनोड पे क्या होता था बोलो बेटा, क्लोरीन गैस, ये दिख रहा है। फिर ये जो सोडियम अमालगम मिलता था उसके अंदर हम लोग क्या डालते थे, पानी, पानी डालते थे तो एक NaOH मिल गया ना, मर्क्यूरी और हाइड्रोजन अलग हो गया। फिर उसका यूजेस क्या है बोलो बेटा, ए व्हाट इज द यूजेस, तो देख, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है बेटा। इजी, बहुत इजी, खाली रीड करना है बेटा, ज्यादा है नहीं इसमें। अब बेटा अपना लास्ट कंपाउंड कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, याद आ रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लाइमस्टोन। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा बेटा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बेटा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बेटा स्लिक्ड लाइम। उसके अंदर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करूंगा तो क्या मिलेगा, देख, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। मिल गया कि नहीं। दूसरा तरीका कैसे है बनाने का, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, दिस विल इंटरचेंज बेटा, लुक हियर, यू गेट कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट PPT। बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा रहेगा ना, लाइम वाटर बिकम मिल्की। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो इट बिकम मिल्की, मिल्की क्यों, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट वाइट PPT होता है। अच्छा, अभी इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो बेटा, ये रिएक्शन पूछते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, इट गिव्स यू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये बेस होता है तो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ना, एनी कार्बोनेट बेटा व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड इट विल गिव यू सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑल कार्बोनेट आर बेस। बेस बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा कि नहीं, और सिंस कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अब बेटा ये इसका यूज, कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे यूज होता है बोलो बेटा, बिल्डिंग मटेरियल है कि नहीं बोलो, मार्बल 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 घर में लगाते हैं कि नहीं बोलो बेटा, राइट। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब क्या है बोलो बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम। देख अगर आप इसको हीट करेंगे, देखना इसको हीट करेंगे तो ये क्विक लाइम मिला के नहीं बोलो, क्विक लाइम मतलब चूना, चूना चूना, पता है कि नहीं, पान में लगाते हैं ना चूना। फिर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एज अ फ्लक्स। पता है बहुत बार एसिडिक गैंग होता है, वो लोग को निकालना होता है, वो लोग निकलते नहीं है, तो सिलिका के अंदर बेटा ये हम लोग डालेंगे तो बेटा ये रिमूव हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट, च्युइंगम, ठीक है ना बेटा। तभी इसमें आप बोलोगे सर इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, तो ये रहा बेटा, आ गया, हाउ इज कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर्ड, लुक, स्लिक लाइन के अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो मुझे देख कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, या तो दूसरा डबल डिकम्पोजिशन वाला मेथड, क्लियर है कि नहीं, राइट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये एसिड डालेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये बेटा ये एरर, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए था, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, गलती से सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया। फिर यूजेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देख आप पूछा कि नहीं, देख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एज बिल्डिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम, हाई क्वालिटी पेपर, टूथपेस्ट, च्युइंगम, फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर इधर पे भी होगा बेटा, देखो कहाँ पे गया, वॉशिंग सोडा, हाँ। अब बेटा चैप्टर का लास्ट पार्ट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड इज यूज फॉर ब्लीचिंग। ओके, आपको भी इसमें पहले याद रखना, ए पेरोक्साइड मतलब H2O2। बेटा लड़कियों आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ब्लीच के लिए वो लोग यूज करते हैं। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30% एक्वेस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कमर्शियली अवेलेबल। तो इसका पहला प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, दो, हम लोग कितने मेथड पढ़ने वाले, टोटल 3 मेथड है बेटा, 3 मेथड, वो मैं बता देता हूँ।
पहला हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनता है? तो बेरियम पेरोक्साइड के अंदर हम लोग बेरियम पेरोक्साइड है बेटा, ठीक है। हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड के अंदर आई ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, तो मुझे क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट वाटर एंड देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है? सोडियम पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करो, तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा और H2 और ये O2, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो पहला मेथड था ना बेटा, इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं वो याद रखना पड़ेगा अपने को। मर्क्स प्रोसेस। ये हम लोग ने अभी ये जो बनाया ना बेटा, ये, अरे दिस दिस मेथड, सेकेंड मेथड, इट इज नोन एज विच प्रोसेस? मर्क्स। मर्क्स प्रोसेस में भी टेक सोडियम पेरोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट वाला बेटा जो है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बेटा। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 50% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा मैं पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करता तो मुझे ये मिल जाता है। ओ माय गॉड, आप बोलेंगे ये क्या है सर? इसका नाम है बेटा पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पेरोक्सी क्यों? बिकॉज इसमें पेरोक्साइड होता है बेटा। और सल्फ्यूरिक एसिड क्यों? बिकॉज इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर है बेटा। ये देख, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा बेटा। एच कितने हैं बेटा? दो है। एस कितने हैं? टू। ओ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा ये जो मिला ना, मैं इसके अंदर पानी डालूंगा बेटा। देखो बेटा, आई ऐड वाटर टू इट। देखा ये, उसका स्ट्रक्चर ऐसा स्प्लिट फॉर्म में लिखा है बेटा। पानी ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देख, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इंडस्ट्रियली कैसे बनाने का, बड़े पैमाने पे अगर मुझे बनाना है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बेटा बाहर करना पड़ेगा इसका, खाली ये जो रिएक्शन है ना बेटा, दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड। तो देख बेटा, ये क्या था जो अभी हम लोग ने बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, ऐसा तीन बेंजीन रिंग होता है उसको क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। तीन बेंजीन रिंग होता है उसको क्या कहते हैं? बोलो बेटा। एंथ्रासीन। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? तो उस पे OH OH डाला तो एंथ्राक्यूनोल, दो OH होता है तो उसको क्यूनोल बोलते हैं। और यहाँ पे 1 2 2 पे कौन है? इथाइल। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? टू इथाइल एंथ्राक्यूनोल। इसके अंदर मैं देख ऑक्सीजन डालता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? ये सब सेम ही रहेगा, टू एन था ये बेटा। ओ यहाँ OH OH है ना, ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे से HH गायब हो जाएगा। यहाँ पे से बेटा ये देख रहे हैं ना बेटा, दो H गायब हो जाएंगे, H H, और ये अपना O2, तो H2O2 बन जाएगा। और यहाँ पे एक एक और रह जाएगा बेटा, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये कीटोनिक ग्रुप हुआ कि नहीं? तो इसको कहते हैं एंथ्राक्यूनोन बेटा। ये क्यूनॉल के जगह पे खाली क्या हो जाएगा? क्यूनोन। बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, देखो बाय प्रोडक्ट अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यू क्या है बेटा? इट इज अ पेल, वेरी पेल ब्लू कलर्ड। ठीक है। इट इज मिसिबल इन वाटर। फिर 30% ऑफ H2O2 मीन्स वॉट? 1 ml में उसके 100 ml ऑक्सीजन होगा। इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग क्या करेगा? दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। देखिए Fe2+ से Fe3+ बनाया कि नहीं? रिड्यूसिंग में यहाँ पे Mn का कितना था? +7, यहाँ पे कितना हो गया? +2। देख उसने ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दिया कि नहीं? सो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। अभी इसका यूज क्या होता है बेटा? देख, इट इज यूज इन माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है बेटा ये। बेटा कभी लग जाता है तो ड्रेसिंग ऑफ वुंड के लिए डॉक्टर ने उस पे क्या डालता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ऐसे बबल्स आते हैं बेटा। ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज एन एंटी क्लोर। एंटी क्लोर मतलब रिमूव्स क्लोरीन, इट रिमूव्स क्लोरीन। ब्लीचिंग एजेंट भी है बेटा। What is anti-chlor? Which remove excess of chlorine from the fabrics which have been bleached. It is used in environment for pollution control. ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करना है बेटा। ओके, ये मैं अलग से बताऊंगा तुमको कैसे सॉल्व करने का क्लास में। अब बेटा
दो कंपाउंड है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके। How it is prepared? When lithium hydride reacts with aluminum, you get what? Aluminum chloride, you get lithium hydride and lithium chloride. So we are interested in this. It is a powerful reducing agent, बेटा। इसका यूज क्या है बेटा? It is a reducing agent, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ओके। लिथियम एल्यूमिनियम, तो इसका प्रिपरेशन याद रखना है एक, और ये इसका काम क्या है वो याद रखना है, रिड्यूसिंग। हम लोग अभी ना बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ना वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब देखना बेटा, इसमें से इसने क्या कर दिया, देख नहीं, ऑक्सीजन गायब कर दिया कि नहीं। ये देख ना, इसमें बेटा ये पूरा गायब करके यहाँ पे क्या कर दिया, देख बेटा, अल्कोहल बना दिया। ये हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे 12th में, अभी फिलहाल ये जानने की जरूरत है। अच्छा। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन। ये रॉन्ग लिखे हैं बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा इसको PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो देख आपको फॉस्फाइन मिलता है, PH3। अब यहां पर आ जाओ, ये देखो, आपको अभी एग्जाम में क्या पूछेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा, एकदम स्टार्टिंग में था पहला, ये देखो। हाँ ये रहा। डन डन डन। देखा, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मैंने आपको क्या बोला था, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल गिव यू व्हाट बेटा, ये बेटा ये H2O2 होना, टू मिसिंग है यहाँ पे, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्शन, ये देखो ये वाला, ये डब्बे में रिएक्शन दिख रहा है ना बेटा, ये देख, ये देख, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर आपको पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, मैंने बताया ना, इट इज पेल ब्लू कलर, बॉइलिंग पॉइंट 274.5, मिसिबल इन वाटर। यूजेस, देखना, माउथ वॉश, जर्मिसाइड, माइल्ड एंटीसेप्टिक, ब्लीचिंग एजेंट, एंटी क्लोर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी यूज होता है टू रिस्टोर एरोबिक कंडीशन ऑफ सीवेज वाटर। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड एंथ्राक्विनोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। मर्क्स प्रोसेस भी याद रखना बेटा। फिर यहां पर आपको इसका क्या क्वेश्चन पूछा है, ये देख, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग ने पढ़ा था ना बेटा अभी, वो पूछेगा बेटा। डन डन डन। देख, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज प्रिपेयर्ड कैसे, तो लिथियम हाइड्राइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। राइट द यूजेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देख रहा है बेटा, ये एसिड को क्या बना दिया, अल्कोहल। देख इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया कि नहीं, बोलो। फिर दूसरा क्या था, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फाइन, PCl3 प्लस एल्यूमिनियम। तो देख क्या करेगा बेटा, फॉस्फाइन बनेगा, जितने भी मेटल है उनका क्लोराइड बनेगा। देख, जितने भी मेटल है उनका क्या बनेगा, क्लोराइड। ओ माय गॉड, तो MCQ में क्या है, ये देखो, डाइहाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया बेटा, सॉल्वेज वाला हो गया। हाँ ये देख, कैसनर कैलनर सेल में आपको मैंने पूछा था ना, एनोड कैथोड बोले गए, तो कैथोड किसका बना हुआ था, बोलो बेटा, मर्क्यूरी। एनोड बोला रहता तो कार्बन लिखते। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है। मैथ द कॉलम अभी हम लोग कर सकते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन कहाँ पे यूज होता था, रॉकेट फ्यूल। सोडियम कार्बोनेट सोप बनाने में यूज होता है। देख, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम लोग क्या बनाते थे, फॉस्फाइन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, एंटीसेप्टिक। इज दिस क्लियर? ओ माय गॉड, सो वी आर, आई थिंक, डन बेटा, वी आर डन विद दिस बेटा। ठीक है ना बेटा, देखो, अभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स है ना बेटा, वो भी आप है ना, मतलब ये आप मेरे नोट्स में देख लेना, उसमें सब है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें से बता दी है बेटा। ये देखना बेटा, इसमें सभी कौन, अल्कली मेटल विद द स्मॉलेस्ट एटम लिथियम, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव अल्कली मेटल कौन है, फ्रेंशियम। अल्कली पूछा बेटा, आयंस हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल सेप, सोडियम। A compound having hydrogen, aluminium and lithium is as a constituent of element. हाइड्रोजन और लिथियम किस में होता था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। राइट। तो देख, आज हम लोग ने पढ़ा था ना, विच इज लुइस एसिड, तो लुइस एसिड तुम्हारा क्या था, बेरिलियम क्लोराइड। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड, बोलो बेटा, तो इसको हीट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, बोलो,
सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। नहीं, सोडियम कार्बोनेट बोला है ना, नथिंग विल हैपन, नो चेंज। ओनली लिथियम कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं पूरे अल्कली मेटल में, बिकॉज लिथियम कार्बोनेट गिव्स यू लिथियम ऑक्साइड एंड दिस थिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो नो चेंज। फिर देखिए डायगोनल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि नहीं, लिथियम और मैग्नीशियम का, राइट। ये सब बेटा हम लोग ने कर दिया। देखना आज बने, आज हम लोग ने ये पढ़ा ना, बेरिलियम क्लोराइड इज कोवलेंट बट मैग्नीशियम इज आयनिक। अरे बेरिलियम छोटा है, मैग्नीशियम बड़ा है। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, ग्रेटर इज कोवलेंट कैरेक्टर। यार फिर आज मैंने ये बताया ना, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्यों बना देता है, बिकॉज वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना देता था। याद आ रहा है कि नहीं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्लियर, राइट। सो बेटा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर। अच्छा इसमें खाली ना ये वाला पार्ट है ना, बट बच्चा ये सम वाला पार्ट मैं वो ना सीईटी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, खाली ये वाला, ये सम कैसे सॉल्व करने का। ओके, clear. So with this we have completed this chapter. Saturday I'll start with alkenes. Alkenes, okay? I'll give you the notes in the class of alkenes, handwritten notes. हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट है अल्कीन्स। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बबितो, बाय बाय।